So I was thinking of this verse in 1 Corinthians chapter 10, और मैं इस वचन के बारे में सोच रहा था जो कि पहला कुरिन्थियों 10वें अध्याय में है, verse 14. 14 वचन। So therefore, my beloved, flee from idolatry. इस कारण है मेरे प्यारों, मूर्ति पूजा से बचे रहो। So the Apostle Paul is writing to all of us. We are the beloved of God, और प्रेरित पौलुस हम में से हर एक को कह रहे हैं क्योंकि हम प्रभु के प्रिय हैं and we should run away from idolatry. और हमें मूर्ति पूजा से भागना चाहिए। He is not telling it to the unbelievers and people who are worshipping idols, but he was telling to believers who want to follow the Lord to run away from idolatry. और वो ये जो वचन है वो अविश्वासी के लिए नहीं है जो मूर्ति पूजा करते हैं, पर वो हमारे लिए है जो विश्वास करते हैं कि हम मूर्ति पूजा से भागे। So he gives therefore means that look at the example of Israel. God saved them so much with such a great miracles from the land of Egypt and was bringing them but into the promised land. और हम इजरायलियों का उदाहरण ले सकते हैं। परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़े बड़े कार्यों को किया था और परमेश्वर ने उनको जिस बंधन में वो रह रहे थे पर उनको वाचा के देश में लेकर आया। And they saw the wonderful miracles, how God delivered them. It is just like the same way how God delivered us from our own bad habits and made us the children of God from the power of the devil into the kingdom of God. और जैसे परमेश्वर ने उनको छुड़ाया वैसे ही परमेश्वर हमें भी शैतान के बंधनों से और जो पाप से है वो छुड़ाएगा। But what is the mistake they did, that instead of thinking and thanking God and waiting for God's time, they started lusting and desiring for evil things. और क्या करते हैं, गलती यहाँ पर होती है कि जब हम परमेश्वर को स्तुति और महिमा देने के बजाय, धन्यवाद देने के बजाय हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, शिकायतें करने लगते हैं और अपनी मन की करने लगते हैं। Verse 6 it says in chapter 10 verse 6 it says, now these things happened as examples for us that we should not crave evil things as they crave. और पहला कुरिन्थियों 10 उसके 6 में लिखा है, ये बात हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे ही हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। Now, there are so many things around us that we can think about and have a great desire to have it. और कई बातें हैं हमारे आसपास जो हम पाना चाहते हैं, इच्छा है हम हमारे पास ये हो जाए। So whatever is not the will of God, that becomes evil. और जो कुछ परमेश्वर की इच्छा में नहीं है वो बुरा है। Whatever is in the will of God is good for us. और जो कुछ परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन में वो भली है हमारे लिए। Suppose God, I want to become very rich. I want to have 5 lakh rupees as a salary every month. But that is not God's will. Then that job will be a big trap for me and will take me away from God. और उदाहरण के रूप में ले लीजिए कि मैं चाहूं कि मैं बहुत अमीर होना चाहता हूँ, हर महीने मुझे 5 लाख रुपए मिले, और पर यदि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है तो वो जो पैसा है, ये जो इच्छा है वो परमेश्वर से मुझे दूर ले जाएगी। So all these desires are there in our flesh. We must see what these desires are. Are they taking us closer to God or far away from God? और ये जो इच्छाएं हैं हमारे जीवन की, हमें देखना चाहिए कि ये जो इच्छाएं हैं वो परमेश्वर के करीब लेकर आ रही है हमें या प्रभु से दूर ले जा रही है। And these desires become very strong. Then it says in verse 7, do not be idolaters as some of them were. As written, the people sat down to eat, drink, and stood up to play. और जब हमें बहुत ज्यादा इच्छाएं होती है तो प्रभु का वचन यहाँ पर 7 वचन कहता है, और ना तुम मूरत पूजने वाले बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसे लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। Yeah. So whenever we admire a lot of things, then it becomes an idol in our life. और हम किसी चीज को बहुत ही निहारने लगते हैं, उसकी तारीफ करने लगते हैं, मतलब वो चीज हमारे जीवन में मूर्ति है। We have to worship God only and admire God. हमें से प्रभु की स्तुति करनी है और उसी की प्रशंसा करनी है। There are so many good things around us in this world. बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो हमारे यहाँ पर हमें जीवन में दिखती है हमारे आसपास। There are things like good food, अच्छा खाना है, good clothes, अच्छे अच्छे कपड़े, good houses, good cars.
अच्छे घर, बड़ी कार, अच्छी कार, good jobs, अच्छी नौकरी, good high positions. अच्छा पद। When that is the desire of our heart and we start admiring it, then that becomes an idol in our life. और यही हमारे मन की इच्छा थी, फिर हम उसकी प्रशंसा करने लगते हैं और ये हमारे जीवन में फिर मूर्ति बन जाता है। And what should we do? We should say, Lord, if it is your will, give it to me. Otherwise, you are my everything. You are my God. You are my Lord. You will help me and in this world, and I will worship you only. और हमें यही करना चाहिए उसके बजाय कि हमें प्रभु से करना बोलना चाहिए कि प्रभु यदि आपकी इच्छा में है ये सब तो हम आप मुझे दे दीजिए, नहीं तो कुछ जरूरत नहीं है प्रभु, आप ही मेरे सब कुछ है, आप ही मेरे प्रभु हैं, मुझे इस संसार में किसी और दूसरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। The children of Israel, even though God did so many good things to them and so many miracles and food from them in heaven, they were not satisfied. और इजरायली जो जन थे, प्रभु ने उनके लिए बड़े बड़े कार्यों को किया, यहाँ तक कि उनको मन्ना भी खिलाया, पर प्रभु को प्रशंसा नहीं देते थे वे लोग। Then when God delayed, then they went and started running after their desires, and they began to eat and drink and so began to dance. और जहाँ कहीं प्रभु की ओर से देरी हो जाती थी तो वहीं वो कुड़कुड़ाने लगते थे और खाना मांगने और पानी मांगने के लिए लगते थे। No, eating really satisfies everybody. और जो खाना है वो हम सभी को संतुष्ट करता है। And then people feel very nice when they eat good food. और लोग जो है बहुत अच्छा महसूस करते हैं जब वो अच्छा खाना खाते हैं। And that doesn't stop there. Then they start drinking all sort of alcohol and all the bad things. और यही नहीं रुकता है, फिर वो शराब पीना शुरू कर देते हैं और गंदी चीजें पीना। And then they start dancing. और फिर वो नाचने लगते हैं, singing, गाने लगते हैं, all the worldly songs. और सारे सांसारिक जो गीत है उसके ऊपर। And immediately after that, the next verse says they started acting immorally. और फिर तुरंत बाद 8वें वचन में लिखा है और फिर वो व्यभिचार करने लगते हैं। So we see all these attractive things in this world, with people of this world are running after. So many film stars, so many rich people, so many, we see about the kings and the queens, about the royal family, how they live in so much of wealth and they love it and they live very immoral lives. और यही संसार के लोग कर रहे हैं, ये संसार में जो हीरो हीरोइन है उसके पीछे भाग रहे हैं। यहाँ तक कि हमने बहुत सारे इस संसार में रानी राजाओं को देखा है कैसे व्यभिचार में जीवन बिता रहे हैं, कितना पापमय जीवन बिताया है उन्होंने। We heard about that Queen Elizabeth died recently. और हमने सुना है कि जो रानी एलिजाबेथ है वो अभी हाल ही में उनकी मृत्यु हुई है। And she was a God-fearing lady. और वो प्रभु का भय मानने वाली एक महिला थी। But her children were brought up with so much of wealth, and with that they were become very spoiled, and they spoiled, most of them spoiled their lives. और पर उनके जो बच्चे थे वो बहुत ही ज्यादा शान और शौकत और बहुत ही पैसों में पले बड़े थे, इसलिए उन्होंने उसको जीवन जो था वो नष्ट हो गया उनका। They have no fear of God in their life. कोई प्रभु का भय उनके जीवन में नहीं था। Only outwardly they have a little they go to church and pray, but inwardly their life is very corrupt. बाहरी रूप से तो चर्च जाते थे, प्रार्थना करते थे, पर अंदर से जो जीवन था वो भी भ्रष्ट हो गया था पूरा। Because they loved to do pleasure and eating and drinking and position, and they would never take correction from anybody. इस संसार का सुख, पैसा, अच्छा जो पद है वो चाहिए था, प्रभु में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। I heard that they would get very irritated when they are corrected, and they would start losing their temper. और मैंने यहाँ ये सुना है कि जहाँ कहीं उनको सुधार किया जाता था या फिर उन्हें बताया जाता था तो वो अपना आपा खो देते थे, गुस्सा करने लगते थे। Praise God that God corrects us and we are not born in very rich families. Otherwise, our life would have been spoiled with all these idols around us. प्रभु का धन्यवाद कि हमें सुधारने के लिए है। हम बहुत अमीर घराने में पैदा नहीं हुए हैं ताकि हम प्रभु के करीब आए हैं। That is why the Bible says, it says in verse 14, run away from all idols. और इसलिए यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि मूर्ति पूजा से बचे रहो। All the idols of good food and pleasure and the positions of men which people give in this world and all the good clothes and all the good facilities, don't run after it. Don't long for it. और इस संसार में जो अच्छा खाना है, जिसकी मूर्तियां बना रखी है, यदि हमारे मन में
अच्छे कपड़े या फिर इस संसार का सुख विलास, तो इससे बचे रहो, मूर्ति पूजा ये सब इससे बचे रहो। God will provide for all our needs and provide the needs of our family if we follow the Lord first, keep Him first in our life. प्रभु हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरी करेंगे, हमारे परिवार की आवश्यकताओं को, यदि हम सबसे पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करते हैं। All those who have followed Jesus God has provided all their needs. We don't have to run after these things and crave after these things. और प्रभु, यदि हम प्रभु का पीछा करते हैं तो हमें दूसरी चीजों की, जो संसार की चीजों की लालसाओं को करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु There हमें are, सही समय पर देंगे। there are so many believers who have followed the world and wanted to make more and more money, more and more houses, more and more jewelry, and now more and more good food. With the result, their spiritual lives have become cold. बहुत सारे जो विश्वासी हैं, उनको वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा खाना चाहिए, बड़ा घर चाहिए और गहने चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, पर प्रभु के साथ जो संबंध है वो टूट जाता है उनका। If God is not first in our life, then the devil and demons will come into our life. और सॉरी ब्रदर, If the God is not first in our life, then demons will come into our life, the devils. यदि प्रभु हमारे जीवन में पहला स्थान नहीं है, तो जो शैतान है वो हमारे जीवन में आ जाएगा। The Lord was telling me, what are your mind? Where is your mind going? Where are your thoughts going out throughout the day? और प्रभु जो शैतान है वो कहता है कि कहाँ जा रहा है तुम्हारा दिमाग, पूरे दिन भर तुम क्या सोच रहे हो। So many times our mind goes here and there to so many worldly, earthly things. और कई बार हमारा दिमाग जो है इधर उधर घूमता है, बहुत सारी सांसारिक चीजों को देखता है, घूमता रहता है। So that at that time the Holy Spirit will tell us, don't stop thinking about those things. और फिर वहां पर पवित्र आत्मा हमें बताते हैं कि इस बारे में सोचना बंद करो। Don't admire the things of this world. Don't admire worldly people and their beauty and their riches and so many other things. और संसार के लोगों की, उसके जो दिखावे की या फिर उसके पैसे की, सुंदरता की प्रशंसा मत करो। But if you continue to admire these things, the desire for God will go down and down in our life. यदि हम लगातार इसी की प्रशंसा करते रहें, संसार में ही खो जाएं, तो फिर प्रभु की जो इच्छा है हमारे जीवन में, प्रभु का जो प्रेम है वो कम और कम होता जाएगा। So sometimes I think that, so Lord, when we have to examine ourselves, Lord, why is my desire for you going down? Why is there is no peace? Why there is not, my heart is not full of thanksgiving and praise? और कई बार ऐसा मुझे लगता है कि हमें अपने आप को जांचना चाहिए कि प्रभु आपका प्रेम मेरे अंदर कहाँ गया है, प्रभु क्या आपके लिए और इच्छा है प्रभु, वो कहाँ चली गई है। And why am I getting irritated and angry? क्यों मैं गुस्सा कर रहा हूँ, क्यों मैं चिड़चिड़ापन आ रहा है। Then the Lord will say, it is because you are loving so many things around you, all these earthly things, and that is why the joy of God has come down and the peace has come down and the love for God has come down in your life. फिर प्रभु कहेंगे कि इस संसार में जो चीजें हैं उससे तुम प्रेम करने लगे हो, इसलिए जो तुम्हारा जो अंदर का जो प्रेम है, शांति है, जो आनंद है, वो कम और कम होता जा रहा है। So we must not deceive ourselves. The world is deceives us and say, yeah, these things are good for you and we also appreciate it, but then in the end of it is death. और इसलिए हमें धोखा नहीं खाना है। इस संसार में बहुत धोखा है और बहुत से लोग कहेंगे कि तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, पर अंत में उसका वो जो है वो पाप ही है। So the most important thing is that we have a devotion and love for the Lord. और जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि परमेश्वर के प्रति हमारे मन में प्रेम और उसकी भक्ति होनी चाहिए। Even if our devotion and love has gone down because of something that or worldly thing that we have in our hearts, we must immediately repent and throw those idols out. Say, no, I don't want this, I want God. यदि प्रभु का प्रेम हमारे मन में कम हो जाता है किसी चीज को लेकर या संसार की अभिलाषाओं को लेकर, तो तुरंत पश्चाताप करना है, कहना है प्रभु से कि प्रभु ये नहीं है, प्रभु आप चाहिए मुझे। Because the people who love God, God will give them all good things. जो कोई प्रभु से प्रेम रखते हैं, प्रभु उनको सब बातें भली करते हैं उनके जीवन में। And the most important thing in our life is eternal life, that is the life of God. और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अनंत जीवन जो प्रभु की ओर से मिलता है। If there is no eternal life in our life, there is no point in having so much of riches and glory in our own life. It is all worth nothing. और यदि हमारे पास अनंत जीवन नहीं है तो कुछ मतलब नहीं है आपके पास पैसा होने का, आपके पास सुंदरता होने का। इस संसार में जो कुछ भी है सब व्यर्थ है।
So every day, brothers and sisters, God has given us an opportunity to live for Him. और प्रभु प्रिय भाइयों बहनों, हर एक दिन जो है प्रभु ने अवसर दिया है कि प्रभु के लिए जिए हम। The most important day of our life is today. सबसे महत्वपूर्ण जो दिन है हमारे जीवन का, वो आज का दिन है। It is not our birthday or any other day. कोई हमारा जन्मदिन नहीं या फिर कोई और दिन नहीं। The Bible says, "This is the day the Lord has made. I will rejoice and be glad in it." प्रभु का वचन कहता है आज का दिन है जो प्रभु ने बनाया है, मुझे इसमें आनंदित और मग्न होना है। So day by day, brothers and sisters, we must walk with the Lord, and whatever is pleasing to the Lord, we will do, and what is not pleasing to the Lord, we will run away from it. We will flee from it. प्रभु हर एक दिन जो है प्रभु ने दिया है, हमें परमेश्वर के लिए जीना है। जो कुछ भी प्रभु को भाता है वो करना है, और जो कुछ नहीं भाता है उससे हमें दूर बचे रहना है। We all are doing ordinary work day by day, all of us. हाँ, हम में से हर एक जो जन है वो जो साधारण सा काम हम रोजमर्रा के जीवन में करते रहते हैं। So we have to do it to please the Lord. और हमें ये काम को प्रभु को खुश करने के लिए करना है। And we live in a world where there are so many people who don't seek after God. They only seek after worldly things. और हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो संसार के, जो प्रभु को नहीं खोज रहे हैं, संसार में अच्छी भली वस्तुओं को खोज रहे हैं। There are so many unbelievers and so many worldly believers also. बहुत सारे अविश्वासी भी हैं और बहुत सारे विश्वासी ऐसे भी हैं जो संसार में खोए हुए हैं। So they are all bring lot of temptations to us. और वो सब हमारी और प्रलोभन जो है हमारे अंदर आता है उनको देखकर। And then we must ask God for the courage to say no. और फिर हमें प्रभु से साहस मांगना है कि हम ना कह सके। All that I do should be to bring glory to Jesus Christ. जो कुछ भी मैं करूं वो परमेश्वर को महिमा देने वाला हो। We must not bow down to take our decisions to please people. हमें झुकना नहीं है और निर्णय नहीं लेना है कि ताकि लोग खुश हो जाएं। The Lord will tell us to read the Word of God, to spend time with Him. We must not waste our time in doing so many other unnecessary things. प्रभु ने कहा है कि समय बिताओ, प्रभु का वचन जो है वचन को पढ़ो, तो हमें दूसरी अनावश्यक बातों में समय को नहीं गवाना है। Many times the Lord tells me, now you are wasting your time. Please stop doing that and don't do the useful things. कई बार प्रभु मुझे कहते हैं कि अब तुम अपने समय को व्यर्थ कर रहे हो, बंद करो इसको करना और कुछ अच्छी चीजें करो। It may not be sinful things, but may be a waste of time. हाँ, वो पापमय चीजें नहीं हो सकती है, पर वो समय की बर्बादी जरूर हो सकती है। So the Holy Spirit is always with you and me, and will always guide you and guide me. हमेशा पवित्र आत्मा आपके साथ है, मेरे साथ है, मेरी अगुवाई कर रहे हैं और आपकी भी अगुवाई कर रहे हैं। He will tell you, this is the way. Don't go there. Do this. This is the right thing to do. हाँ, वो हमें बताएंगे कि नहीं, यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, ये सही तरीका नहीं है, ये सही तरीका है, हाँ ऐसा करो। And I listen to the Holy Spirit, then I get the fruit of the Spirit, and the blessing of God and the character of Jesus Christ. और यदि मैं पवित्र आत्मा की बात को सुनूं तो पवित्र आत्मा के फल जो है मेरे अंदर दिखाई भी देंगे और प्रभु का स्वभाव भी दिखाई देगा। And if we don't obey, then we find that there's a coldness and a lukewarmness that comes into our life. और यदि मैं आज्ञा को ना मानूं तो गुनगुनापन और ठंडापन मेरे जीवन में दिखाई देगा। Then I don't feel like praying. I feel very sad, and then there's no joy in my life. फिर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, कुछ आनंद नहीं रहेगा हमारे जीवन में, प्रशंसा भी नहीं कर पाएंगे। The Lord wants us to give thanks continuously in everything. Give thanks. प्रभु चाहते हैं कि निरंतर हम प्रभु का धन्यवाद करते रहें, लगातार धन्यवाद करें। And to praise the Lord continuously. हर एक बात में धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें। Whatever the situation. कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो। And if I cannot praise God, there is something wrong in my own life. यदि प्रभु की प्रशंसा नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है हमारे जीवन में। We may not have a good feeling. हमारी अच्छी भावनाएं नहीं आएंगी। No, but whatever it says, Lord, you are Lord, I will praise you and thank you. कुछ भी हो, पर प्रभु को कहना है कि प्रभु आप मेरे प्रभु हैं, मैं आपकी प्रशंसा करूंगा। I want to keep you first in my life because you died for me and took me away from the power of the devil.
हाँ, मैं आपको अपने जीवन के पहले स्थान में रखूंगा, क्योंकि प्रभु आपने मुझे शैतान के बंधन से छुड़ाया है। And even in this trouble that has come across my life, I know you are going to do it. You are going to do things for my very good. यदि दुख भी आता है मेरे जीवन में, कोई परेशानी भी आती है, तो कोई बात नहीं है प्रभु, आप मेरे जीवन के लिए भलाई ही कर रहे हैं। So as we thank God, we find that God will fill us with the Holy Spirit. फिर हम देखेंगे कि हाँ, प्रभु जो है हमें पवित्र आत्मा से भर रहे हैं। I will repeat an incident that happened to my life again, which I've told before. और हाल ही में कुछ ऐसी व्याख्या मुझे याद आता है That once I was doing a duty in the hospital, and it was a 24 hours duty. और एक दिन जब मैं अपने हॉस्पिटल में था, कुछ काम को कर रहा था, और वो 24 घंटे की नौकरी थी मेरी। And I was doing a test, blood test and urine test and all those things I had to do in the laboratory. और मैं खून की जांच और यूरिन टेस्ट कर रहा था। So I was working from 9 o'clock in the morning up to 12 o'clock, and I was wanting to finish the last thing and go to sleep. और मैं सुबह 9 बजे से रात को 12 बजे तक काम कर रहा था, और ये आखिरी चीज को कर रहा था, और सोच रहा था कि बस इसको खत्म कर दूं। And I was completing the last job and then was about to leave the place when suddenly one peon came with another sample and said to do the sample. और मैं अपने आखिरी काम को कर ही रहा था, फिर एक प्यून आते हैं, वो बोलते हैं कि ये एक और सैंपल आपको लेना है। So 1 more hour I'll have to do for 1 more sample. और एक और घंटा मुझे समझ में आया कि एक और घंटा अभी मुझे और काम करना है। And then I got irritated. और फिर मैं थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया। And I asked that man, आप कहाँ से आया है? और मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि आप कहाँ से आए हैं? Now in a hospital there are 7 floors. There are the big building, 7 floors. और जो हॉस्पिटल था वो 7 मंजिला था। So instead of saying 5th floor, 6th floor, he said मैं ऊपर से आया। और 5वें या 6ठे मंजिल कहने की बजाय उसने कहा कि मैं ऊपर से आया हूँ। So God spoke to me that God has sent it to me from above. और फिर प्रभु ने मुझसे बात की कहा कि ये जो है मेरे ऊपर से आया है। So then I took the sample and started doing the test, and I started praising God. I said, Lord, I thank you. There is a song that came to my mind which says, glory to Jesus, your name be praised. All that you send me is for my best. और फिर मैंने प्रभु का धन्यवाद किया, और आखिरी सैंपल को भी बहुत ही अच्छे से किया, और वो गीत मेरे मन में आया है कि प्रभु आपके नाम को महिमा मिले, जो कुछ भी आप कर रहे हैं मेरे जीवन में वो भलाई ही है। So in the middle of the night, I was worshiping God and praising God and doing my work. और आधी रात को मैं प्रभु का धन्यवाद कर रहा था, स्तुति कर रहा था, और अपने कार्य को भी कर रहा था। Now all my tiredness went away, the sleepiness went away. I was worshiping God in the middle of the night. और मेरी जो थकान थी वो चली गई थी, नींद मुझे आ रही थी, वो नहीं अब आ रही थी, पर अब मैं प्रभु का धन्यवाद और स्तुति कर रहा था। So when we look to God, God gives us a spirit of praise and thanksgiving that even when our tiredness and our anxieties and all will go away. और जब हम प्रभु को और देखते हैं तो सारी जो थकान है, नींद है, हमारी चली जाती है, और प्रभु के लिए स्तुति और धन्यवाद हमारे जीवन में आ जाता है। And God has sent it, and God will help us, and He does it for our good. और प्रभु जो हमारी ओर भेजते हैं वो सब कुछ भलाई ही के लिए भेजते हैं। And as we used to read in Psalm 34. और जैसे कि हम भजन संहिता 34 में पढ़ते हैं, verse 5. 5वां वचन। They looked to him and were radiant, and their faces shall never be ashamed. जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, और उसका मुंह कभी काला होने न पाया। So whenever we look to the Lord, even in our tiredness, in our sickness, our face will shine. That means we will have a joy in our heart and we'll praise the Lord. जब भी हम प्रभु को देखते हैं, चाहे बीमारी में हो, चाहे हम थकान में हो, मुश्किल में हो, तो प्रभु की जो चमक है वो हमारे जीवन में, हमारे चेहरे पे दिखाई देती है। All our grumbling, irritation, all will go away.
सारा जो चिड़चिड़ापन है, कुड़कुड़ाते हम रहते हैं, शिकायतें हैं, वो सब चला जाता है। We'll ask God to forgive us, and God forgives us. प्रभु से हम बोलते हैं कि प्रभु माफ कर दीजिए, प्रभु माफ कर देते हैं। And it is so wonderful to have the presence of God with us all throughout the day. और ये बहुत ही अद्भुत और अच्छी बात है कि पूरे दिन हमारे साथ परमेश्वर की उपस्थिति होती है। Instead of living at the earthly level with food and clothes and people, and we are dealing with them, now we are dealing with God. We are coming up to living in the heavenly places. और जहाँ कहीं हम सिर्फ इस संसार के लोगों में ही खाने में पीने में यही सब बातें में करते रहते, पर अब हमारा जो है ऊंचे हो गए हैं, हम प्रभु के साथ बातचीत करते हैं। You and I are called to be heavenly people. और मुझे और आपको प्रभु ने स्वर्ग की बुलाहट दी है। We are living in the heavenlies. हम स्वर्ग के लिए यहाँ पे स्वर्ग में जी रहे हैं हम। We are worshiping God and praising Him and talking to God and praying for people and praying for the things of God. प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु से बातचीत कर रहे हैं। All the people of this world are talking about earthly things, about food, clothes, ornaments, parties, weddings, birthdays. This is the only thing that they have to talk. और ये जो संसार के लोग हैं वो सिर्फ इसी को लेकर बात करते हैं। खाना पीना, कपड़े, घर, इस पार्टी में जाना है, इस जश्न में जाना है, ये पहनना है, बस यही सब। And the thing is that most believers also are talking like the worldly people. और कई बार ऐसा होता है कि विश्वासी भी इन सब बातों में लग जाते हैं। They are so occupied with earthly things that they have no time to be occupied with heavenly things. वो इतना व्यस्त हो जाते हैं संसार की बातों में, तो फिर स्वर्गीय बातों पर मन लगाने का उनके पास समय ही नहीं होता। But we should be occupied with heavenly things, and we have no time for all sitting and gossiping and backbiting and talking about politics and all what people are done and their faults. और इसलिए बस हमें तो ऐसा करना है कि स्वर्गीय बातों में व्यस्त होना है, हमें वहां पर ही मन लगाना है, ताकि हमारे पास समय ना रहे इस संसार में जो काम हो रहे हैं, जो बातें हो रही है, क्या हमारे बारे में बोला जा रहा है, वो सब सुनने के लिए। There is a lot of useless talk and faltu talk that goes on among people, among believers also. बहुत सारी ऐसी फालतू की बातें जो है विश्वासी और अविश्वासी दोनों के मध्य में हो रही है। But we must be busy doing the Lord's will and doing what God wants us to do, so we have very little time to go and spend the time with them. और इसलिए हमें तो सिर्फ प्रभु पर भरोसा रखना है, प्रभु के साथ समय बिताना है। इस संसार में बहुत थोड़ा ही टाइम मिला है। We want to do what God wants us to do and do good to all people and bless the name of the Lord. अभी हमें क्या करना है कि प्रभु की स्तुति करनी है, हमें प्रभु सब लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना है। We have to die daily. हमें रोज मरना पड़ेगा। I remember one incident in the hospital that there were some nurses in my hospital, my ward. Some other nurses were calling them, please come, let us have tea and come and chit chat. और मुझे एक बात याद आती है कि एक नर्स थी और वो अपने कार्य को कर रही थी और दूसरी नर्स जो है उनको बुलाती है कि चलो चाय पीते हैं, कुछ बातें करते हैं। But she told him, see, I've got so much work, मुझे मरने के लिए भी टाइम नहीं है। और वो कहती है कि मुझे तो बहुत सारा काम है, मरने को भी समय नहीं मिल रहा है। Then the Lord spoke to me, we must be busy wanting to deny ourselves and die daily, that we have no time to go and live for the world. और फिर प्रभु ने मुझसे बात की कि रोज हमें ना कहना है, रोज हमें मरना पड़ेगा। This is how Enoch lived, Noah lived, Jesus lived, Abraham lived. और इसी तरीके से हनोक भी जिए हैं, अब्राहम जिए हैं, यीशु मसीह जिए हैं। They prayed for the people around them. They wanted people to go to heaven. They have a desire, and they prayed, and they blessed so many people. वो लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, चाहते थे कि वे भी स्वर्ग में जाएं, और वो उनके लिए प्रार्थना करते थे। And they told people, if you turn to God, you must repent. और कहते थे कि मन फिराओ और पश्चाताप करो। So, dear brothers and sisters, let us turn away from all our idols and all the attractive things of this world and do the things that God wants us to do. और इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें मन फिराना है, बचे रहना है मूर्ति पूजा से और परमेश्वर की ओर मन लगाना है। The fellowship with God is the most important thing. परमेश्वर के साथ संगति बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। It's not just on Sunday morning that we gather, or it's all throughout the day. You and I can have personal fellowship with God. सिर्फ रविवार की सुबह नहीं कि हम आपस में मिलते हैं तो प्रभु की उपस्थिति में रहना है, पर नहीं, पर हमें तो महीने के सातों दिन 24 घंटा प्रभु की उपस्थिति में रहना ही है।
Anybody of us can be very close to God. सॉरी ब्रदर, Any one of us can go very close to God. हम में से हर एक जन प्रभु के बहुत करीब जा सकते हैं. God doesn't show any this partiality. प्रभु किसी का भी भेदभाव नहीं करते. When Jesus was alive, the people like Mary Magdalene, even though she was such a bad lady, had so many sins, she was a person who saw the Lord Jesus and was very close to the Lord Jesus. जब प्रभु जीवित थे और जब जीवित हुए तो मरियम मगदलीन जो बहुत ही पाप में जीवन बिताया था, उसको ही पहले दिखाई दिए थे. Because she loved the Lord and thought about the Lord so much. क्योंकि वो प्रभु से प्रेम रखती थी, प्रभु के बारे में बहुत सोचती थी. So brothers and sisters, you and I also, we can obey the Lord, love the Lord, then the Lord will be very close to us. इसलिए भाइयों बहनों, हमें भी प्रभु से प्रेम रखना है, उसकी आज्ञा को मानना है और उसी के करीब फिर हम रहेंगे. So it is a very good life to live and very easy life to live. और ये बहुत ही अच्छा जीवन है जीने के लिए, बहुत ही आसान भी है. Amen. So here Brother Ratnaswamy share and others can share after that. I thank God for today's encouraging words. प्रभु आज के प्रोत्साहित वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद. So here, flee from idolatry. और यहाँ पर लिखा है कि मूर्ति पूजा से बचे रहो. And 1 Corinthians chapter 6 verse 18. पहला कुरिन्थियों And 2 Timothy, we familiar words often quoted were 2 Timothy chapter 2 verse 22. And पहला कुरिन्थियों 6:18. 18 वचन. And you need not read, sister. And 2 Timothy chapter 2 verse 22. These all three verses. Now we have seen 1 Corinthians 10:14. These all three verses, it is Bible words. God's word warn us, flee. और ये जो वचन है, ये सारे जो ये 3 वचन है, ये परमेश्वर यहाँ पर बताते हैं कि बचे रहो. So at the same time, James chapter 4 verses 6 and 7. Please read, sister. याकूब 4 अध्याय 6 and 7. वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है. इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा. Yes, here resist the devil, he will flee from you. और यहाँ पर लिखा है कि शैतान का सामना करो तो वो आपके पास से भाग जाएगा. But that 3 verses says that flee from these things. और यहाँ फिर दूसरा वचन ये कहता है कि इन सब बातों से दूर रहो, भागो इन सब चीजों से. So that is very, very important, my dear brothers and sisters. और ये सबसे बहुत ही ज्यादा जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहन. If God's words say flee or keep away from, then we should flee. और यदि प्रभु कहता है कि भागो, बचे रहो, तो हमें यही करना है. Then if God says submit God and resist the devil, means we can resist the devil with God's grace. और यदि प्रभु कहता है शैतान का सामना करो, तो प्रभु के अनुग्रह से हम सामना कर सकते हैं. If we humble before God, because God give the grace to the humble. हम प्रभु के सामने नम्र हो जाएं, क्योंकि प्रभु जो नम्र लोग होते हैं उस पर अनुग्रह देता है. So, my dear brothers and sisters, let us humble before the mighty hand of God. He will bless us. He will give grace to flee from all lusts, all love of money, all idolatry. Amen. और इसलिए प्रभु के सामने दीन और नम्र हो जाना है, ताकि प्रभु सारी जो मूर्तियां हमारे जीवन में ज्यादा जो पाप है उससे हमें छुड़ाएंगे. आमीन. Praise the Lord. आणखी कोणी है? Anybody wants to share? You can share. Brothers and sisters, कोई भी कुछ भी प्रभु आपको मन में पवित्र आत्मा को आप बात किया है, वही शेयर कर लीजिए.
प्रभु की स्तुति हो। अबाउट वो जो ब्रदर जॉर्ज आज बोल रहे थे कि अबाउट वर्किंग एंड वॉकिंग गॉड्स विल, मेरे को एक बात याद आई अभी। क्या हुआ था कि ये जो जॉब जो मैंने शुरू किया था, मेरा जो काम, ये एक 1.5 years ago मैंने स्टार्ट किया था विद वर्क फ्रॉम होम। और आज हमारा एक टीम मीटिंग था जिसमें हमारा टीम नहीं तो और टीम बोल रहा था कि अक्टूबर से वो शुरू हो जाएगा वर्क फ्रॉम ऑफिस। तो मेरा मूड थोड़ा डाउन हो गया था। मैं सोचता ऐसे क्यों मेरा मूड डाउन हो रहा है। मैं अपने आप को सोच भी रहा था कि ना व्हाई डिस्क्वाइटेड ऑफ माय सोल, व्हाई अपसेट विद मी, पर वो मूड ऊपर नहीं आ रहा था। तो जब मैंने ये सोचा तो मुझको काफी इंस्पिरेशन मिला कि ब्रदर ने ऐसा करके 24 घंटे का काम भी उन्होंने एकदम रिजॉइसिंग किया। तो मुझे मालूम पड़ा कि कितना कंप्लेन एंड ग्रम्बलिंग है एक्चुअल में मन में। मतलब इवन इफ आई डोंट एक्सप्रेस इट, बट ऑन माय फेस, मेरे चेहरे पे वो आया, दिल में ऐसा उतर जाता है। और ये मुझे पता नहीं प्रभु की इच्छा है या नहीं पता नहीं, लेकिन बचपन से मुझे किधर विदेश में सेटल होने की इच्छा है। और अभी जो परसिक्यूशन आ रहा है इंडिया में वो सब, उससे मुझे और एक इच्छा होता, पहले होता जाने के लिए। लेकिन मेरा भाई मेरे को हमेशा बोलता है, उसने अभी मेरे को रिसेंटली मेरे को बोला था कि अगर तू अपने खुद की जॉब में तो सक्सेसफुल नहीं रहेगा तो किधर और जाके सक्सेसफुल नहीं रहेगा, क्योंकि तेरे को तेरे घर पे तेरे को अच्छा सक्सेस बनना है करके। तो वो हम लोग मोस्टली हम लोग क्रिकेट टर्म्स में बात करते हैं। तो मेरे भाई ने मेरे को बोला था कि ना अगर तो वानखेड़े पे सेंचुरी नहीं मारेगा तो पर्थ पे तो आउट होके इंजर्ड हो जाएगा। तो मैंने सीरियसली लिया वो जो उसने बोला। तो लाइक यू नो कुछ टाइम से मैं सुबह सुबह मैं वॉकिंग करता हूँ, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज एक पार्क में नियर बाय। तो मैं सोचता हूँ कि ना मैं अपना दिन का शुरुआत कैसे शुरू करूँ आज का, कैसे मैं अपना काम करूँ, कैसे बाइबल पढूं, प्रे करूँ, कैसे मैं अपना घर का काम करूँ, कैसे मैं ऑफिस का काम करूँ। फिर ऑफिस जाने के बाद जब मैं घर पे वहां से वर्क स्टार्ट कर देता हूँ, मैं सोचता हूँ अच्छा आज मेरे को इतना इतना ऐसे करना है। सपोज कुछ टेंशन होती है, थोड़ा सा हट के इधर उधर चल के थोड़ा सा रिलैक्स करके फिर वापस काम पे लग जाता हूँ, वैसा। तो और और जब ब्रदर ये बोल रहे थे उनको वो एटीट्यूड चेंज हुआ जब उन्होंने वो सुना कि ऊपर से आया। तो मुझे भी लगा कि ना भले मेरे को थोड़ा 1 घंटा जल्दी उठना पड़े वॉकिंग करने के लिए, लेकिन अगर गॉड के वेले में जाऊंगा ऑफिस में, गॉड बचाएंगे मुझे कुछ भी इन्फेक्शन होने के लिए, कुछ भी चीज से। वैसा मैं प्रभु को स्तुति और आराधना देना चाहता हूं, इसलिए आमीन। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने भी कुछ वचनों से मुझे प्रोत्साहन दिया, उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। मैं भी जब वर्क प्लेस पे था तो आज परमेश्वर ने वो मैथ्यू चैप्टर 12:36 है, वो मुझे इंकरेजमेंट मिला कि एवरी केयरलेस मैन शैल स्पीक, ही हैज टू गिव अकाउंट ऑफ डे ऑफ जजमेंट। तो हर एक मनुष्य जो निकम्मी बात कहेंगे न्याय के दिन उसे लेखा देंगे। तो मैं जब स्टाफ रूम में बैठा था तो बहुत सारे टीचर्स बातचीत कर रहे थे, उधर मैं भी था। तो अचानक कोई टीचर थे, किसी ने उनको बताया कि एक व्यक्ति ने बहुत चोरी किया, गलत काम किया। और तो दूसरा टीचर ने बोला कि अरे अच्छा, उसको चोरी किया, उसको मर जाना चाहिए। तो ऐसा उन लोग ने बोला, लेकिन मैं देखा कि उन लोग के अंदर मर्सीफुल हार्ट और दयावंत ऐसा उन लोग के थॉट्स नहीं रहते। क्योंकि तभी मैं परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि जो ये मैथ्यू चैप्टर 7 में जो है, उसमें मैथ्यू के अध्याय 7 में अ गुड ट्री कैन नॉट बियर अ बैड फ्रूट, मतलब अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। हर एक पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता है वो काटा जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा। तो परमेश्वर मुझसे यही बात कर रहे थे कि तुम अच्छा फल लाओ, क्योंकि तुम बाहर वाले का तो परमेश्वर न्याय करते हैं। और मुझे अलर्ट भी रहना पड़ता है, क्योंकि कई बार हम क्या बोलते हैं, वो सामने से तो हम दिखते हैं भेड़ जैसा, लेकिन हो सकता है अंदर से भेड़िया रहता है। मतलब हमें प्रभु बता रहे हैं कि तुम अलर्ट रहना, चौकस रहना और तुम अच्छा फल लाना, जिससे कि परमेश्वर की महिमा हो। और तो ये बातें दो चीज सीखने मिला
कि परमेश्वर हमारे सब चीज हमें जानते हैं। हमारे फल अच्छा फल लाएंगे तो परमेश्वर हमें फल देंगे। जैसे गलतियों में भी लिखा है कि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। अगर मैं परमेश्वर करे आत्मा के लिए बोगे तो तुम अनंत जीवन की कटनी काटोगे। तो ये सब वचनों से परमेश्वर ने मुझे प्रोत्साहन दिया और वो सामर्थ शक्ति देते प्रभु, गीतों के द्वारा भी मुझे प्रोत्साहन देते और उस सब बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आमीन। आमीन। मंदिर है तो हमको मंदिर में पाप नहीं करना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद। ये मंदिर क्यों है? हम प्रभु का धन्यवाद करने के लिए और आराधना करने के लिए प्रभु हमको बुलाया है, अच्छी टाइम में भी बुरी टाइम में भी। तो प्रभु हमको हर तकलीफ में लेके गुजरा देंगे। We will be walking through all the difficult situations. Every day has enough problems. यीशु मसीह ने कहा, each day has enough problems of its own. So today has problems, tomorrow also there will be problems. God knows when to take the problems, but God wants us to praise Him because God is great. God is Jesus is mighty, and we will say, Lord, I thank you that you are doing a work in my life, and knowing that I can know you closer through all these problems. All the brothers and sisters in Christ, all godly people went through so many problems. When you see the problems Jesus went through, Apostle Paul went through, but they thanked and praised the Lord. They learned the lesson how to praise Him. So हम लोग पहले कभी हम लोग थोड़ा सीखने में थोड़ा हिचकिचाते हैं. We take time, but we have to learn. And the Holy Spirit will teach us over and over again. 10 बार भी मिस्टेक किया तो 10 बार प्रभु देखे. 1000 बार भी हम लोग सेम मिस्टेक किया तो प्रभु हमको 1000 बार सिखाएंगे, हमको बताएंगे, पश्चाताप कराने के लिए बताएंगे और हमको मदद करने के लिए तैयार है. God is very good, so good that we are His own children. We say, Lord, you have been so patient with me. हमारे लिए इतना सारा दया किया है और प्रभु मैं आपके लिए जीऊं. प्रभु मेरा मन तो हमेशा यहाँ वहाँ घूमते फिरते हैं, लेकिन प्रभु पवित्र आत्मा हमको बताते हैं ऐसा मन यहाँ वहाँ घुमाओ मत, गलत चीज में मत हो, सांसारिक चीज में घुमाओ मत, प्रभु के ऊपर रखो, प्रभु का धन्यवाद करो और प्रार्थना करो लोगों के लिए. तो मन को तो प्रार्थना करो, लोग ब्रदर्स सिस्टर्स इतना लोग है हमारे पीछे, तो उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो हमारा मन टाइम बी यूटिलाइज्ड वेल. नहीं तो फालतू की चीज बातें करेंगे, फालतू की चीज या टीवी देखेंगे, अब यूट्यूब की लॉट ऑफ अननेसेसरी थिंग्स आर देयर. तो कई कई आकर्षण आता है हमारे जीवन में, उससे थोड़ा दूर रह के अपना जो यूजफुल है हम कर सकते हैं. हमारे लिए पढ़ाई तो यूजफुल है, कुछ काम करना यूजफुल है, वो उसमें कर सकते हैं, लेकिन हमारा फ्री टाइम होता है तो हम प्रभु के लिए हमारा मन रखना चाहिए और प्रभु जरूर हमारा आशीष करेंगे और प्रभु की गीत हमारे जीवन में आएंगे और we will be having close fellowship with God, and that is how we should be like the bride and the bridegroom. Prabhu, he is we are a dulhan and wo dulha hai. So let us have that fellowship with the Lord daily. Let us pick it up more and more in our own life. So it all depends on us. Let us not compromise. प्रभु के लिए एक कुंवारी जैसा, like a pure virgin we should be for Jesus Christ till we come till the end of our life. So we praise the Lord that God will bless us